بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے تشدد پر اکسانہ قتل کے حکم کے الزام میں شیخ حسینہ کو عمر قید اور دیگر 3 الزامات میں سزائے موت سنائی۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے 450 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے۔ ملزمہ نے طلبہ کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی، طلبہ کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم مظاہرین پر بے دریغ طاقت کا استعمال کیا، مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کروایا۔ سزائے موت سنائے جانے پر کورٹ میں تالیاں بھی بجائی گئیں۔ عدالت کا بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسد الزما کمال کو بھی سزائے موت کا حکم۔ سابق انسپکٹر جنرل پولیس چودھری عبداللہ المامون کو 5 سال قید کی سزا۔ کارکنوں کی مشکلات سے آگاہ، ہر چیز کا حساب ہوگا، حامیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا عدالتی فیصلے پر دھمکی آمیز رد عمل۔ اپنے حامیوں کے نام ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہیں جو فیصلہ سنانا ہے سنا دیں، مجھے پرواہ نہیں، مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، میری زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، میں اپنے ملک کے عوام کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا، بھارت فوری طور پر شیخ حسینہ واجد کو حوالے کرے۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزما کمال کو بھی بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے تنبیہ کی کہ مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے، مجرموں کو پناہ دینا انصاف کی بے توقیری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، فیصل ممتاز راٹھوڑ نئے وزیر اعظم۔ آزاد کشمیر منتخب، فیصل ممتاز راٹھوڑ کو 36 ووٹ ملے، مخالف میں 2 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت ہوا۔ 53 اراکین کے عوض میں 44 ممبران حاضر، 9 غیر حاضر رہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی قاسم مجید نے تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش کی۔ نئے وزیر اعظم کی علم برداری کل ہوگی۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا، عوام کے مسائل کو وسائل کے اندر رہ کر حل کرنا ہے۔ کچھ مسئلے حل ہو سکتے تھے جس میں تاخیر ہوئی۔ کابینہ کا شکریہ جس نے میری آزادی کے پروانے پر دستخط کیے۔ چودھری انوار الحق کا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے الوداعی خطاب، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہی آئین اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی کا ذمہ دار ہو، کیا میری کابینہ کے ممبران اس کے ذمہ دار نہیں؟ بارہا کہا کہ میری موجودگی میں تقسیم کشمیر کا کوئی فارمولہ نہیں ہو سکتا، مہاجرین کی نشستوں کو ختم کرنے پر دستخط کرتا تو یہ میری سیاسی موت تھی۔ کراچی پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں پر ریلوے جو ایک بسیدہ نظام بن چکا تھا، ٹریڈ سسٹم کو بھی آپ پوری طرح آرگنائز کر رہے ہیں۔ ہر کول کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وفاق اور سندھ گورنمنٹ کا ایک اشتراک ہے، 50-50 ہم اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جو رقوم آپ کو درکار ہیں انشاءاللہ وہ فی الفور وہ آپ کو ہم دلوائیں گے۔ سینٹرل ایشیا میں بے پناہ ایپیٹائٹ ہے کہ وہاں پر ریلوے کے نظام کو استوار کیا جائے۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے لیکن یہاں کا ریلوے کا نظام بوسیدہ ہو چکا۔ ریلوے کے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پارٹنرشپ کا دائرہ کار بلوچستان اور کے پی حکومتوں کے ساتھ بھی بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی شالیمار ایکسپریس اور کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا، کہا کینٹ ریلوے اسٹیشن کراچی کی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی ہے، آؤٹ سورس کے ذریعے ٹرین کا انتہائی بہترین کام کیا گیا، مجھے یقین ہے کہ یہ منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک کو ختم ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا، ناگزیر ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہوگی۔
सिंध में सूबा भी बनेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम का भी क्रेडिट लें। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करवाने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया, इसके कोई जवाब नहीं। मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की और उनको बग़ैर होमवर्क की हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और अपनी जो इस वक्त MQM की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। सिंध कोई केक नहीं है कि उसको बांट दिया जाए। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का MQM को जवाबी वार, कहा ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बाइकॉट किया। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। MQM के एक वज़ीर ने बग़ैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। खवारिज नौजवानों को मजहब के नाम पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। फितनल खवारिज नौजवानों को जहनी तौर पर तैयार करके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खारजी दहशतगर्द के फितनल खवारिज से मुताल्लिक़ होशरुबा इंकशाफात दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने इंकशाफ किया कि उसने 3 साल तक मुख्तलिफ खारजी कमांडर्स के लिए सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन हमले समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में शामिल रहा। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी फाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। वज़ीर इत्तला तथा तारर ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भारतीय झूठ को बेनकाब किया गया। सऊदी अरब के साथ तारीख़ी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। दोस्त मुल्कों से दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस इरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की समाअत का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। KP की हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तरा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अपील में पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहाँ से आएगा। उस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करे। अदालत ने मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं कि आइन की पासदारी के लिए अदलिया पर ज़रूरी है इस्तीफ़ा देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करें। हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अदलिया पर बहुत ज़वाल भी आए। 26 नवंबर एहतजाज का केस। सलीमा खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की ATC ने 11वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सलीमा खान की पंजाब में जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने निजी बैंक में सलीमा खान के 22 अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत रेलवे का चार्ज संभाला तो इदारा ज़बू हाली का शिकार था। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। गुज़श्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। शालीमार एक्सप्रेस को जदीद खतूत पर इस्तवार करना शहरियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रही है। नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा मॉस्को पहुँच गए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा आला हुकाम ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया।
इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में अहम इलाकाई और सिफारती मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर जियान जिडोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। कराची में सुपर हाईवे दुम्बा गोट के करीब गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, दोनों खवातीन पुल से नीचे गिर गईं। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। डिफेंस ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ट्रैकर और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर डंपर और टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अहमदपुर शर्किया में मोटरवे M5 पर कुछ शरीफ इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद दिया। बस ड्राइवर के सोने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हादसे में मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक। मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी शिफ्ट खत्म करके उच्च शरीफ आ रहे थे। हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज 30 साल वक़ास 95% तक झुलसा हुआ था। जख्मी होने वाली मजीद 2 अफराद सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। फैक्ट्री धमाका केस में गिरफ्तार मुलजिम शकील 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में आइंदा हफ्ते से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड हो सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि रात में मौसम खुनक रहने के साथ सुबह सवेरे हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। सऊदी अरब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मक्का से मदीना आ जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 42 अफराद जाँ बहक। बस में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। उम्रा ज़ायरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम मुल्कों की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे के तहत गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती होना है। वाशिंगटन ने खबरदार किया है, मंसूबे पर अमल न होने की सूरत में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सहीनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा, बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालिफत जारी रहेगी। हमास को हर हालत में गैर मुसल्लह किया जाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, मगर किसी के अहकामात पर नहीं चलेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का 2 टूक मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान में यूरेनियम की अफज़ूदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान शफ़ाफ़ और बावक़ार मुज़ाकरात का हामी है। अमरीका की हालिया पेशरफ्त बाहमी मफाद में नहीं, सिर्फ मुतालबात थोपने की कोशिश है। अमरीका मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर ने रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले मुल्कों पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। तेज आवाज में मौसीकी चलाने और ज्यादा हॉर्न देने वाली गाड़ियों की अब AI से पकड़ होगी। दुबई में शोर मचाने वाली गाड़ियां पकड़ने के लिए AI रडार सिस्टम नस्ब कर दिया गया। शोर मचाने वाली गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। 3 मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रनुमाई। सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल। पहला मैच कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सलमान अली आगा कहते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज में हमारी कोशिश होगी कि वनडे के मोमेंटम को बरकरार रखें। क्रिकेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। एशिया कप में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन पिछली वाइट बॉल सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 212 रन हदफ के
ताकुब में कौमी टीम ने 32 गेंदों कबल 4 विकेटों के नुकसान पर टारगेट हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। हुसैन तलत ने 42 रन बनाए। मेहमान टीम 46वें ओवर में 211 रन पर ढेर हो गई थी। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस सऊफ और फैसल अकरम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, कहा खिलाड़ियों, कोचेस, इंतजामिया की मेहनत और जज्बे पर फख्र है। और हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम क्रूज को एजाजी ऑस्कर अवार्ड से नवाज दिया गया। शानदार फिल्मी करियर के एतराफ में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। टॉम क्रूज एजाजी एकेडमी अवार्ड मिलने पर जज्बाती। टॉम क्रूज ने कहा कि सिनेमा मुझे इख्तलाफात की कद्र और एहतराम करना सिखाता है।